हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई वेलकम यू ऑल इन दिस न्यू सेशन एंड न्यू लेक्चर that is the extension part of the previous one. In previous video in metal cutting I have discussed the mechanics of orthogonal machining, in which I have discussed only the velocity analysis, right? Now in this session I am going to discuss the orthogonal machining on the basis of forces. How many types of forces are there, and what is the way to find out the cutting force in this, what is the impact of frictional force on the chip, what is the normal force, what is the shear force. So these forces we will discuss in this chapter, okay? And how a merchant circle is drawn with all the 6 forces in orthogonal machining, right? So I am starting my video, and before starting, again it's my request to all of you that I, Sherpa Ayaz, I did my BTech from National Institute of Foundry and Forge Technology in Manufacturing Engineering. So that's why I'm teaching you manufacturing, and I am having expertise in this manufacturing topic, because already having 5 years teaching experience, and since I did my BTech in manufacturing, so I have also some advantage over the others. Okay. Uh, so now I am going to start force analysis in orthogonal machining operation. Okay, so I was saying that you please subscribe my channel, you please like the videos and share with your friends. Okay, everyone, आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई भी मैं वीडियो डालूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो भी वीडियो मैं डाल रहा हूँ सब गेट और ईएससी ओरिएंटेड है, कोई उसमें एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है? तो मैंने पहला अभी अपलोड कर दिया है और दूसरा अभी इसके बाद मैं फिर अपलोड करूंगा। तो आप एक काम करो, सारे वीडियोस को देखो, और लास्ट में मैं इस पे ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स बनाऊंगा। मैंने अभी एनसीसीएनसी पे भी एक अपलोड किया है, आप उसको जाके देखो, आपको बहुत मजा आएगा। और फिर अगेन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके, स्टार्ट देखते हैं आज फोर्स एनालिसिस को मर्चेंट सर्कल में। देखो देखो दोस्त, फोर्स एनालिसिस देखो क्या है ये। चलो, तो जो कल पढ़े थे हम लोग उसमें ये पढ़े थे, यहाँ तक पढ़ चुके थे। अब फोर्स एनालिसिस की बात करते हैं। तो मैंने ये फिगर बनाया था, देखो मैं जल्दी से फिर वो फिगर बना दे रहा हूँ तुम्हारा। एक 3D फिगर बनाया था, याद है? एक 3D फिगर बनाया था मैंने। तो एक बात बताओ, एक 3D फिगर फिर बना लेता हूँ जल्दी से, देखो कैसे मैं फास्ट बनाऊंगा। टुडेज टॉपिक इज द फोर्स एनालिसिस, तो लेट मी राइट ऑल द फोर्सेस। फोर्स एनालिसिस in orthogonal machining, right? Force analysis in orthogonal machining. Okay, तो फोर्स एनालिसिस इन ऑर्थोगोनल मशीनिंग। तो पहले कौन कौन सा फोर्स है सर ये बताइए। ऑर्थोगोनल को बोलते हैं 2D फोर्स डायग्राम। ऑर्थोगोनल में जो होता है हमारा 2 फोर्सेज आता है और ऑब्लिक में 3 फोर्सेज होते हैं। कहां पर? कटिंग पॉइंट पर। लेकिन अभी हम ओवरऑल देख रहे हैं, मतलब इस ओवरऑल ज्योमेट्री में वी विल डिस्कस द फोर्सेज एट द इंटरफेस ऑफ चिप एंड द टूल, right? And at the contact surface between the shear plane, between the chip and the workpiece. Okay, so we will discuss everywhere in this. So that's why 2 forces are the cutting point, that is your cutting force and thrust force, and 2 forces at the rake face and 2 forces at the shear plane. Total how many forces? 6 forces are there. So first see the name of all the forces so that it could be easy for you to name it in the diagram. See, the first force is cutting force, right? Cutting force always acts in the direction of cutting velocity. Remember it. Cutting force acts in the direction of cutting velocity. Okay, and it will be denoted by FC, right? But cutting velocity is not denoted by VC. VC is the chip velocity and V is the cutting velocity, right? In my notation. Second is your thrust force. To hold the tool, thrust force, right? Is your FT, thrust force. And FC is perpendicular to FT always. Remember, cutting force is always perpendicular to thrust force, and thrust force is always perpendicular to. So here, cutting force is perpendicular to thrust force.
and these two forces are measured by dynamometer. Force is measured by dynamometer. So these two forces are measured by dynamometer. For objective, this question is asked in ESE. Measured by dynamometer. Measured by dynamometer, right? Dynamometer, right? Dynamometer. Now see. Now this is the at the cutting point, two forces are there, and same in the oblique machining, three forces will be there: axial force, radial force, and the cutting force, that is tangential force. Tangential force, axial force, and radial force. So later on we will discuss when I will teach you the oblique machining operation, in which I will discuss all these things. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं. दूसरा है हमारा दूसरा जो पेयर है, तीसरा एक आएगा, अब हमारा आएगा रेक फेस पे. क्या आएगा? एक फ्रिक्शनल फोर्स. Frictional force at the rake face. Frictional force acting at the rake face. Only directly write frictional force. Okay, frictional force, you know, acting at the rake face, right? Frictional force. This is denoted by F. And force will be your normal force. F is equals to mu n. Therefore, the normal force acting on the rake face. Normal force. Normal force. Okay. N. So these two forces acts on the rake face, right? Rake face. A tool having two faces, one is your rake face and second is your release face, right? So it acts on the rake face. Okay. And these two also perpendicular to each other. Frictional force will be perpendicular to normal force, and one formula is valid here. F is equals to mu n, right? This is valid in this. F is equals to mu n. Okay. What is mu here? Coefficient of friction. Mu is your coefficient of friction. Mu is equals to coefficient of friction. Okay, do you know what is friction angle? Coefficient of friction. Okay, what is friction angle? Suppose I am drawing the free body diagram of this block. See, in rough I am explaining. See, this is the friction, rough surface, and this is your block, right? This is the block, right? And you are applying a force. This is the, you are applying a force like this. Okay, what will happen? Suppose frictional force will be applied like this. Okay, this is the friction force. This is the random force. I am denoting, since we have a confusion, therefore I am denoting this force as a P Newton of force. Okay, and this will be a friction force F. Okay. Now the normal force, this mg will also act here in this. This is your mg, and normal force will shift little bit so that it can balance the torque of the friction. Okay. Now, but I am taking here normal force. This is the normal. Okay. This is the normal force. This is the friction force. Now the resultant. See, this is the friction force. This is a vector. We can shift it like this here. So suppose if I shift this vector, this is your F. Whenever I shift, you will get a resultant. The resultant of normal and friction. The resultant of normal and friction will be this. The resultant of normal and friction is the resultant force. The resultant of normal force and friction force. Okay. So what is your beta? Beta is the angle between the resultant and the normal force. Angle between the resultant and the normal force. Okay, see. So this is your friction angle beta. Remember this always. So this will be your beta. This will be your beta. This angle will be your beta, friction angle. Okay, angle between normal and resultant. Resultant is, therefore the resultant will be, resultant is nothing but, resultant is root under f square plus n square. Very simple. And beta is what? Frictional angle. Beta is frictional angle. Frictional angle. Angle of friction. Right. So this is the angle of friction, beta. So beta is the angle between resultant and normal. Resultant and normal. Are you getting, everyone?
So at rake face, friction will come into picture and normal will be there. F is equals to mu n is valid. Resultant is root under f square plus n square. Beta is the friction angle. Friction angle is the angle between the resultant of friction and the normal force. Everyone, no problem. Now, so this is the another pair. This is the pair and this is the pair. Now the fifth and sixth pair, which is your shear force and normal force. See. So here you have this fifth shear force acting at the shear plane. Shear force acting at the shear plane. This will be denoted by Fs. And normal force acting on the shear plane. Normal force acting on the shear plane, this will be Fn. Normal force and shear force acting on the shear plane, oblique plane. And here also this formula is valid. Fs will be perpendicular to Fn. Fs will be perpendicular to Fn. Any doubt? Please let me know. Any doubt? This is valid. Means shear force and normal force is perpendicular on the shear plane. Friction and normal is perpendicular. Cutting and thrust force is perpendicular. और cutting और thrust force को measure करते हैं dynamometer से. Easy to fine. Now the analysis. See. Now sir, can you represent all the forces in orthogonal machining diagram? Yes, I can represent. I am showing you. See. Representation of all the forces is now. Representation of all the forces. Representation of all the forces. Okay, I am making the diagram again. I can copy it, but I am making the diagram again so that आपको ऐसा लगे कि सर इतना जल्दी बना रहे हैं तो हम भी देख के बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं. ठीक है, तो मैं बना रहा हूं, आप देखिए मैं फिर कैसे बना रहा हूं डायग्राम को. कुछ नहीं करना है, very simple it is. One line will be like this, second line will be like this, right? It will be like this, okay, and next line will be like this. Now rough surface like this. Okay, now this will be your tool. This will be your tool. Okay, this will be your tool. Now it will go like this. It will be go like this, correct, right? Now this is the extension. This is the extended machined surface, correct? Now what you can say, now whenever you extend, it will be like this, okay, and this will be your dotted portion. Okay, now this will be, it will be like this. Now you can extend it, and this will be like this extension, right? And this will be like this, okay, and again it will be like this, and this will be, see, it will be like this. Okay, and this will be your like this. Okay, now one minute, there is some problem in it. It will be like this. Right, it will be like this. This is shear plane, correct? This is how this will be your shear plane. So this is how we can draw the diagram. Okay, so this diagram is drawn now. Now what you can do, sir, this is your rake face.
and everything. Now I am only representing the force. See, the first force which will be drawn at the cutting point, you can say at this plane where the cutting velocity, in the direction of cutting velocity, you will have what? In the direction of cutting velocity, you will have this cutting force, right? This is the cutting force, therefore we can shift it like here. It is a vector, this force is vector. इस वेक्टर को हम लोग क्या कर सकते हैं? शिफ्ट कर सकते हैं उसी प्लेन पे स्पेस में विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन. तो कटिंग पॉइंट पे ये आएगा हमारा और ये ऐसे आएगा. आएगा बोलो. तो ये हमारा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं. चलो सबसे पहले देखते हैं चिप को. 1 मिनट. चलो देखो सबसे पहले चिप को देखते हैं. तो ये है हमारा शेयर प्लेन. 1 मिनट. ये है हमारा शेयर प्लेन. दिस इज आवर शेयर प्लेन, राइट? ये शेयर प्लेन है. देखो ये हमारा शेयर प्लेन. देखो ये शेयर प्लेन है. अगर तो एक बात बताओ, ये जो चिप है मेरे दोस्त, ये यूनिफॉर्म, ये इस पे पहले फ्रिक्शन फोर्स को दिखाओ. तो ये चिप फ्लो करेगा इधर वीसी वेलोसिटी से. तो इस वीसी वेलोसिटी को अपोज करने के लिए कौन आ जाएगा? फ्रिक्शन. तो यहाँ पे सर ये वीसी वेलोसिटी से जाएगा वीसी से. इसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शन आएगा. आएगा ना? तो बना दो फ्रिक्शन फोर्स को. चलो तो मैं फोर्स को बना रहा हूँ ब्लू कलर से. तो ये हमारा आ रहा है फ्रिक्शन. तो यहाँ पे मैं बना दिया फ्रिक्शन को. ठीक है, एक यहाँ पे मैंने बना दिया फ्रिक्शन को. इस फेस पे हमारा आ गया फ्रिक्शन फोर्स. तो ये है हमारा फ्रिक्शन. ठीक है, ये हमारा आ गया फ्रिक्शन F. अब फ्रिक्शन अगर आया तो नॉर्मल भी आएगा. तो इस पे एक नॉर्मल फोर्स आ जाएगा इस तरह का. तो ये आ गया नॉर्मल. चलो नॉर्मल फोर्स आ गया. अच्छा, अब इस दोनों का रिजल्टेंट को डिनोट किए थे कैपिटल से. तो ये एक रिजल्टेंट आएगा. चलो ये तुम्हारा आ गया रिजल्टेंट मान लो. तो ये तुम्हारा आ गया रिजल्टेंट R. ये रिजल्टेंट आ गया R. इसका रिजल्टेंट को मैं मान रहा हूं R डैश. द रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल इज R डैश. ओके, एंड द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंड नॉर्मल, द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंड नॉर्मल इज कॉल्ड बीटा, राइट? दिस इज योर बीटा. तो एक बात बताओ, ये चिप फ्लो कर रहा था वीसी वेलोसिटी से. सर ये चिप फ्लो कर रहा था वीसी वेलोसिटी से. तो वीसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, एक्सेलरेशन नहीं है इसमें, बात याद रखना, एक्सेलरेशन नहीं है. लेकिन इसमें फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है. ये एक फ्रिक्शन आया, ये एक नॉर्मल आया, इसका एक रिजल्टेंट आया R डैश. Since the chip is moving with uniform velocity, which means as per Newton's first law, the net force on the chip will be zero. The net force on the chip will be zero, which means this इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है हमारा R डैश. इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है R डैश, मतलब इसी डायरेक्शन में इसको आगे बढ़ाओगे तो एक और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अगर लग जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, तो जितना ये फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, ये नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो. तो इसको अगर तुम एक्सटेंड करोगे, देखो कैसे करोगे. देखो इसको अगर एक्सटेंड करोगे, देखो अगर तुम इसको एक्सटेंड कर दिए तो अब यहाँ पे देखो, ये अगर तुम इसको रिजल्टेंट निकालोगे, देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर तुम रिजल्टेंट निकालो इसका, मैं बोल रहा हूँ ये एक मैं डायरेक्शन मान रहा हूँ R डैश, R डबल डैश. क्यों बोल रहा हूँ? देखो ये चिप यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लेकिन फ्रिक्शन और नॉर्मल की वजह से एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है. तो नेट फोर्स कैसे जीरो होगा? अगर मान लो इस डायरेक्शन में 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो इसी अपोजिट डायरेक्शन में भी अगर 100 न्यूटन का फोर्स लग जाएगा तो नेट फोर्स कैंसिल हो जाएगा ना. तो ये वाला R2 डैश किस दो फोर्स का रिजल्टेंट होगा? ये कहां पे जा रहा है? शेयर प्लेन पे. शेयर प्लेन पे कौन दो फोर्स आता है? एक आता है शेयर फोर्स, एक आता है नॉर्मल फोर्स. तो यहाँ पे बात आती है कि शेयर फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा. तो चूंकि रिजल्टेंट का डायरेक्शन इधर है, तो शेयर फोर्स का डायरेक्शन भी किधर होगा? ऐसे होगा. बताओ, ये ऐसे और ये ऐसे होगा. बहुत आदमी एक्सप्लेनेशन इसका नहीं देता है, डायरेक्ट लिख देगा कि शेयर फोर्स का डायरेक्शन होगा इधर. क्यों होगा? लॉजिक समझो. शेयर फोर्स का डायरेक्शन इंटरव्यू में पूछते हैं, इधर क्यों होगा? कोई पूछेगा कि इधर क्यों नहीं हो सकता? ये शेयर फोर्स इधर और ये शेयर फोर्स, ये नॉर्मल फोर्स, ये शेयर फोर्स Fs और ये Fn, ये ऐसे क्यों नहीं? अगर ये इधर होगा, सुनो, अगर ये इधर होगा तो रिजल्टेंट किधर आएगा? इधर आएगा. मतलब 100 न्यूटन इधर आ रहा है, इधर भी 100 न्यूटन आ रहा है, मतलब 200 न्यूटन. मतलब इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा? फोर्स. 200 न्यूटन का फोर्स आएगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा ना चिप में. लेकिन चिप तो क्या कर रहा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है. इसका मतलब जो हमारा जो रिजल्टेंट होगा, मतलब सर
सर इससे यही समझ में आया कि ये जो इस प्लेन पे शियर फोर्स आएगा, इस प्लेन पे जो शियर फोर्स आएगा और इस प्लेन पे जो नॉर्मल फोर्स आएगा, शियर फोर्स और नॉर्मल फोर्स, मतलब इस प्लेन पे जो शियर फोर्स आएगा ऐसा, ठीक है, और इस प्लेन पे जो नॉर्मल फोर्स आएगा ऐसा, इसका जो डायरेक्शन होगा सर, आज समझ में आ गई बात कि इसका जो डायरेक्शन होता है शियर फोर्स का, एफ एस, ये होता है राइट हैंड साइड में, और इसका जो डायरेक्शन होगा, अगर ये डायरेक्शन चेंज किया तो चिप में आ जाएगा एक्सेलरेशन, आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा एफ एन। तो ये एक ऑब्लिक प्लेन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़े होगे, ये एक ऑब्लिक प्लेन है, इस पे शियर फोर्स भी आ रहा है, नॉर्मल फोर्स भी आ रहा है, पढ़े होगे ना, नॉर्मल स्ट्रेस निकालते थे, शियर स्ट्रेस निकालते थे बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंडीशन, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा, पढ़े हो ना, प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। तो ये हमारा यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, और ये एंगल 90 डिग्री है बेटा, इसको याद रखना, ये एंगल 90 डिग्री है, ये तो 90 डिग्री होता ही है, और ये एंगल भी यहाँ पे हमारा 90 डिग्री है। चलो, तो पता चल गया सर, ये रिजल्टेंट, ये फोर्स ऐसा और ये ऐसा होगा, दोनों का रिजल्टेंट अगर बराबर होगा तभी चिप हमारा यूनिफॉर्म रेसिड्यू। पिक्चर क्लियर हुआ? पिक्चर क्लियर हुआ दोस्त? वेरी गुड। चलो, अब बात आती है सर, तो यहाँ पे एक लाइन लिख लूं, एक लाइन लिख लूं, लाइन लिखो, क्या लिखोगे? बोलोगे सर, सिंस द चिप्स आर moving with uniform velocity, which means the net resultant force on the chip will be equal to 0. Therefore, to make the resultant force equal to 0, r dash must be equal to r double dash, right? तो यहाँ पे सुनो 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 सुनो, क्या आ रहा है हमारा, यहाँ पे आ रहा है कि सर r dash is the resultant of f square plus n square, correct? And r double dash is the resultant of what? Resultant of fs square plus fn square. Very good, very good, very good, very good है। तो since chips are moving with what? Moving with uniform velocity. Chips are moving with uniform velocity. Chips are moving with uniform velocity, which means net resultant force on the chip must be equal to 0, must be equal to 0, correct? So how can the resultant force will be equal to 0 on the chip? On tip, two forces are acting, R1 and R2, which means R1 dash must be equal to R2 dash. So this is the assumption, so that the chip will move with uniform velocity. बोलो 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 बोलो, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? वेरी गुड, फाइन फाइन फाइन। लाइक करो, मजा आ रहा है तो लाइक करो, एवरीवन लाइक करो, शेयर करो। मैन्युफैक्चरिंग पढ़ना है तो इसी चैनल पे पढ़ना है, नहीं तो नहीं पढ़ना है। मैन्युफैक्चरिंग इसी चैनल पे पढ़ना है, ठीक है? आर डैश आर डबल डैश बराबर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक साइन, अब यहाँ पे देखो, अब हमारा बचा हुआ है कौन सा? कटिंग फोर्स, थ्रस्ट फोर्स। तो कटिंग पॉइंट कौन सा है? देखो कटिंग पॉइंट कौन सा है? यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे टूल है, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में जो फोर्स जाएगा, इस डायरेक्शन में जो फोर्स जाएगा तुम्हारा, ये फोर्स कौन सा होगा? कटिंग वेलोसिटी के डायरेक्शन में, ये होगा कटिंग फोर्स। और इसके परपेंडिकुलर जो आएगा, इसके परपेंडिकुलर जो आता है टूल को होल्ड करने के लिए, ये आएगा हमारा थ्रस्ट फोर्स, ठीक है? तो ये हो गया हमारा ये, तो ये आ गया काटने के लिए, ये पकड़ने के लिए, ये दबा के रखते हैं ना टूल को, देखे नहीं वो ड्रिल किए, वो एक आता है ना, रिएक्शन आता है, उसको होल्ड करके रखते हैं ना, तो ये आ गया हमारा थ्रस्ट फोर्स, ये आ गया कटिंग फोर्स, से कटेगा, ठीक है? तो अब बताओ, देखो ये कटिंग फोर्स था यहाँ पे, ये तो इसका भी सर एक रिजल्टेंट आएगा, बिल्कुल आएगा, इसका भी एक रिजल्टेंट आएगा, बिल्कुल आएगा। इसका रिजल्टेंट सर देखो, इसका भी ठीक है, देखो सी, इसका भी एक रिजल्टेंट आएगा दोस्त, कटिंग फोर्स और थ्रस्ट फोर्स का रिजल्टेंट, इसको मैंने डिनोट किया क्या? R3 डैश,
R3 डैश, ठीक है। क्या बताओ R डैश, R डबल डैश और R3 डैश तीनों इक्वल होगा? नहीं, तीनों इक्वल नहीं होगा सर, दो तो इक्वल होगा क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। अब बात आती है ये सर R3 डैश, ये जो रिजल्टेंट है, अब एक साइंटिस्ट आया था मर्चेंट, एक साइंटिस्ट आया मर्चेंट, वो क्या बोला देखो, वो बोला एक काम करो, अगर ऐसा मान लो कि R3 डैश भी इस दोनों के बराबर आ जाए। बोले कैसे बराबर हो जाएगा? बोलो वेक्टर को स्पेस में शिफ्ट कर सकते हो, इस FC को, इस FT को मान लो आर्टिफिशियली तुम शिफ्ट कर दो इसको, इस FC को यहां से उठाओ और यहाँ पे लाओ, तो जब तुम देखोगे इसको यहाँ पे लेके आओगे, मैं आर्टिफिशियली बना रहा हूँ, देखो मान लो इसको तुम यहाँ पे लेके आए और इसको भी शिफ्ट किए यहाँ पे, तो ये तुम्हारा आएगा क्या दोस्त बताओ, ये तुम्हारा इसको शिफ्ट करोगे ये FC आएगा और ये तुम्हारा आएगा FT, थ्रस्ट फोर्स आएगा। तो अब देखो ये रिजल्टेंट इसका यहीं से पास कर रहा है ना, ये तीनों का रिजल्टेंट एक लाइन से पास कर रहा है। तो ये मर्चेंट एक साइंटिस्ट था जिसका अजम्पशन था कि दो का तो रिजल्टेंट सेम है, तो वो बोला एक काम करो, ऐसा डिजाइन करो कि कटिंग फोर्स और थ्रस्ट फोर्स भी ऐसा आए कि कटिंग फोर्स और थ्रस्ट फोर्स का भी रिजल्टेंट फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स के रिजल्टेंट और शियर फोर्स और नॉर्मल फोर्स ऑन द शियर प्लेन के रिजल्टेंट के बराबर हो। वो बोला तो ये रिजल्टेंट मतलब ये वाला जो R3 था उसको भी यहीं पे तुम अज्यूम कर लो कि यही R3 होगा, मतलब R डैश, R डबल डैश और R3 डैश तीनों इक्वल, दो तो इक्वल होना ही था, तीसरा कौन किया? मर्चेंट आके, मर्चेंट ने एक और नया अजम्पशन ले लिया। तो मर्चेंट अजम्पशन क्या था देखो, ठीक है, ये होगा एक्चुअली यहाँ पे, लेकिन हम स्पेस में शिफ्ट कर दिए, वेक्टर है शिफ्ट कर सकते हैं, रिजल्टेंट निकाल लिए। मर्चेंट अजम्पशन क्या था? मर्चेंट्स अजम्पशन, मर्चेंट्स अजम्पशन, ठीक है। तो मर्चेंट्स अजम्पशन है हमारा कि ऐसा मान रहे हैं कि सबका रिजल्टेंट क्या है? बराबर दोस्त, मतलब R1 डैश इज इक्वल्स टू R2 डैश इज इक्वल्स टू R3 डैश इज इक्वल्स टू R, इज इक्वल्स टू R, मतलब सबका रिजल्टेंट सेम, मतलब R इज इक्वल्स टू रूट अंडर F स्क्वायर N स्क्वायर इज इक्वल्स टू FC स्क्वायर प्लस FT स्क्वायर एंड इज इक्वल्स टू FS स्क्वायर प्लस FN स्क्वायर, राइट, FS स्क्वायर एंड FN स्क्वायर, मतलब नॉर्मल फोर्स ऑन द शियर प्लेन एंड शियर फोर्स ऑन द शियर प्लेन। तो ये हो गया हमारा R रिजल्टेंट। तो अगर सबका रिजल्टेंट सेम है, एक बात बताओ, सबका रिजल्टेंट सेम है तो एक सर्कल अगर तुम बनाओगे, एक सर्कल अगर तुम बनाओगे, मर्चेंट ने एक सर्कल बनाया है ना, मर्चेंट ने एक सर्कल बनाया और बोला डायमीटर, अगर तुम किसी भी एक लाइन ड्रॉ करो सर्कल में जो पॉइंट से पास कर रहा है, सेंटर से पास कर रहा है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? डायमीटर। तो डायमीटर हमेशा क्या होगा? बराबर ही होगा, कहीं से भी तुम पॉइंट को ड्रॉ करो सर्कल में तो वो जो डायमेंशन तुमको मिलेगा वो हमेशा बराबर होगा। तो ये बोला कि रिजल्टेंट अगर सेम आ रहा है तो हम क्या करते हैं, मर्चेंट सर्कल एक इसको मान लेते हैं डायमीटर ऑफ अ सर्कल, इसको डायमीटर, जब उसने सर्कल बना के देखा डायमीटर ऑफ अ सर्कल, मतलब कौन सा सर्कल? मर्चेंट सर्कल। कौन बनाया था? मर्चेंट ने एक सर्कल बनाया और रिजल्टेंट देख रहा है सबका सेम है तो उसने बना लिया एक सर्कल। अब देखो, अब मैं इसको तुमको अगर आगे बढ़ाओगे यहाँ पे इस सारे फोर्सेस को, इस सारे फोर्सेस को अगर तुम मिला के देखोगे दोस्त, इस सारे फोर्सेस को अगर तुम मिला के देखोगे थोड़ा सा आगे, तो एक सर्कल के अंदर सारा फोर्सेस आ जाएगा तुम्हारा। कैसे आ जाता है? कैसे आ जाता है तुम्हारा, ये मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। देखो देखो मैं डायरेक्टली बना रहा हूँ, रिजल्टेंट सबका सेम है, ठीक है। देखो यहाँ पे, चलो सबसे पहले मैं मर्चेंट सर्कल ही बना दे रहा है क्योंकि नहीं बन पाएगा मुझसे, क्योंकि कंपास है नहीं ना। ऐसे तुम कंपास लेके डेटा लेके बनाओगे तो एग्जैक्ट सर्कल बन के तैयार होगा, लेकिन मैं यहाँ पे पहले ही सर्कल बना रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ डेराइव करना है, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ द सर्कल है, तो देखो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ये देखो एक सर्कल बना लो दोस्त, चलो ये भैया बन गया सर्कल, नहीं नहीं इतना बड़ा नहीं, थोड़ा छोटा, चलो भाई, चलो भाई बढ़िया बन गया, ये सर्कल बन गया। चलो सर्कल बन गया, तो अब यहाँ पे मर्चेंट ने क्या बोला, देखो मैं उल्टा चल रहा हूं, मर्चेंट ने सबको ड्रॉ करके सर्कल बनाया था, मैं सर्कल से आगे फोर्स रिलेशन की तरफ जा रहा हूं क्योंकि उतना ज्योमेट्री हमें एग्जैक्ट कंपास से उतना वैसा नहीं बनाना है, ठीक है।
तो चलो अब देखो यहाँ पे हमारा येलो कलर का टूल था, टूल को लगा दो यहाँ पे, ये टूल था ना, दिस इज योर टूल राइट, दिस इज योर टूल। अब देखो ये टूल पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो दोस्त। ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो। चलो अब ये बताओ मुझे दोस्त, ये बताओ ये टूल का ये वाला फेस कौन सा है? इसको सर आप बताए थे रेक फेस, इसको बताया था रिलीफ फेस, तो ये रेक फेस है, तो रेक फेस है, तो रेक फेस। और ये था मशीन्ड सरफेस, इसका परपेंडिकुलर लाइन है, तो परपेंडिकुलर के साथ ये एंगल क्या बनता है, क्या बनता है एंगल अल्फा, तो ये एंगल आ गया अल्फा, ये एंगल आ गया अल्फा, ये एंगल आ गया अल्फा। चलो ये रेक फेस है, तो एक बात बताओ रेक फेस के पैरेलल कौन सा फोर्स आता है दोस्त? फ्रिक्शन। रेक फेस को एकदम आगे बढ़ा दो, देखो देखो ये रेक फेस था, यही है ना रेक फेस, ये रेक फेस है? और इस पे आगे की तरफ एकदम ऐसे बढ़ा दो तो ये हो जाएगा फ्रिक्शन। मतलब सर रेक फेस को आगे एक्सटेंड कर दें और ऐसे बना दें एफ, तो ये फ्रिक्शन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, मतलब रेक फेस के पैरेलल है। तो ये हम इसको अगर अपन इसको अगर यहाँ पे आगे बढ़ा दें, कौन सा है रेक फेस? रेक फेस हमारा ये है, रेक फेस हमारा ये है हमारा रेक फेस, है ना? तो इसको अगर आगे बढ़ा दीजिएगा सर तो आपका बन जाएगा फ्रिक्शन। तो चलो इसको आगे बढ़ा देते हैं, कौन सा कलर बढ़िया रहेगा? चलो इससे बनाते हैं, इसको आगे बढ़ा दिए, जैसे ही इसको आगे बढ़ा, एकदम पैरेलली बनाना है दोस्त, पैरेलली बढ़ा दिए, ठीक है? तो ये पैरेलली बढ़ गया, ठीक है? मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, कलर में मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है। दूसरा कोई कलर कोई दमदार, ये वाला ले लूं? ये नहीं, इसे तो एंगल दिखा दिया हूँ, चलो ब्लू ही ले लेता हूँ। चलो इस वाले को अगर आगे बढ़ा दूं, एकदम आगे, ठीक है? पैरेलली एकदम पैरेलली, रेक फेस के पैरेलल इसको एक्सटेंड करो, एक्सटेंड कर दिए। अब यहाँ पे तुम इस तरह एक ये बना दो एरो, एरो बना दो जल्दी से, और क्या लिखोगे? लिखोगे एफ, क्या लिखोगे? एफ, दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स, करेक्ट। अब देखो, अब इसके परपेंडिकुलर, इसके तुम अगर परपेंडिकुलर बनाओगे तो एक आएगा क्या? नॉर्मल। देखो नॉर्मल क्या था? फ्रिक्शन के परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल, तो अगर फ्रिक्शन इधर है तो इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल, एक नॉर्मल फोर्स आएगा इसको परपेंडिकुलर, ठीक है? तो फ्रिक्शन है यहाँ पे, तो नॉर्मल फोर्स बनाएंगे, तो नॉर्मल फोर्स जो आएगा सर, इसके परपेंडिकुलर बनाना है, मतलब परपेंडिकुलर मतलब इसको इधर एक्सटेंड कर दो ऐसे, तो परपेंडिकुलर लग रहा है दोस्त? ना नहीं लग रहा है, चलो यहाँ पे कर देते हैं, अब लग रहा है, अब लग रहा होगा। तो ये हो गया भाई नॉर्मल, ये हो गया भाई नॉर्मल, तो ये आ गया क्या? 90 डिग्री होता है ना दोनों, ये आ गया 90 डिग्री। तो फ्रिक्शन और नॉर्मल का जो रिजल्टेंट होता है उसको आर बोलते हैं। यहाँ पे तो सारा रिजल्टेंट सेम है, इसको मैं दिखाया था रेड कलर से, तो रेड कलर से मैं यहाँ भी दिखाऊंगा। तो ये है रिजल्टेंट, राइट? तो ये है रिजल्टेंट, ये डायमीटर है मर्चेंट सर्कल का, यहाँ पे ये आ रहा है आर। बोलो बोलो बोलो, आ रहा है आर, तो ये आ गया रिजल्टेंट। अच्छा बीटा क्या बताए थे? फ्रिक्शन एंगल, फ्रिक्शन एंगल क्या बताए थे दोस्त? फ्रिक्शन एंगल इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल एंड द नॉर्मल। तो नॉर्मल और रिजल्टेंट के बीच का एंगल, नॉर्मल और रिजल्टेंट के बीच का एंगल फ्रिक्शन, तो ये हो जाएगा सर आपका, ये हो जाएगा सर आपका बीटा, ये हो जाएगा सर आपका बीटा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलो। अच्छा सर अब अगला देखिए, अगला है आपका कटिंग फोर्स। कटिंग फोर्स क्या था? कटिंग फोर्स होता था कटिंग पॉइंट को हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ाना। कटिंग फोर्स को हॉरिजॉन्टली, देख लें सही बोल रहे हैं कि नहीं? हाँ, कटिंग पॉइंट को हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ा दिए थे तो कटिंग फोर्स मिल गया था, और परपेंडिकुलर थ्रस्ट फोर्स, ठीक है? तो कटिंग फोर्स को, जो कहां पे टूल का टिप है ये कटिंग पॉइंट, उसको हॉरिजॉन्टल आगे बढ़ा दो, तो आगे बढ़ा देते हैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल आगे बढ़ा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा ये,
ठीक है, तो ये आ गया हमारा। चलो अब इसका तुम्हें तो पता है कि ये हो गया कटिंग फोर्स, ठीक है, कटिंग फोर्स। अच्छा रिजल्टेंट तो सबका सेम है, तो रिजल्टेंट ये है तो एक तीसरा वेक्टर नहीं मिल जाएगा, तीसरा वेक्टर ये मिल जाएगा, डायरेक्ट थ्रस्ट फोर्स तो आसानी से मिल जाएगा यहाँ पे, ये इसको यहाँ पे लाके मिला देना है क्योंकि रिजल्टेंट सबका सेम है। तो रिजल्टेंट सबका सेम है, तो ये आ गया हमारा, दोस्त बताओ, ये आ गया हमारा थ्रस्ट फोर्स। कोई प्रॉब्लम किसी को? तो ये है 90 डिग्री, कोई प्रॉब्लम? ये आ गया हमारा थ्रस्ट फोर्स, कटिंग फोर्स, थ्रस्ट फोर्स ड्रॉ हो गया। तीसरा आ जाओ, तीसरा सर एक शेयर प्लेन बना दीजिए, यहाँ पे इस जगह पे एक शेयर प्लेन बना दीजिए। चलो बना देता हूँ एक शेयर प्लेन, ये शेयर प्लेन है ना। और शेयर प्लेन देखो कैसे है, ये कटिंग फोर्स था और ये एक शेयर प्लेन है। तो शेयर प्लेन पे एक फोर्स आया था, ये कटिंग फोर्स और इसके बीच का एंगल कितना होता था, फाई। फाई होता था कटिंग फोर्स और शेयर फोर्स के बीच का एंगल, फाई, है ना। कटिंग वेलोसिटी एंड शेयर वेलोसिटी के बीच का एंगल फाई। तो सर ये जो एंगल आपका आ जाएगा, ये एंगल होगा फाई। ओके कोई बात नहीं, ये फाई होगा बिल्कुल, ये फाई है। और ये आपका जो फोर्सेस है ये यहाँ पे, ये एफ एस, इस डायरेक्शन। कहीं कहीं पे किसी किसी बुक में मिलेगा आपको इस डायरेक्शन में भी, बताता हूँ क्यों, रीजन क्या है उसका। चलो अच्छा, रिजल्टेंट तो यही है, अब यहाँ से यहाँ मिला दो, ऐसे यहाँ से यहाँ मिला दो, तो ये तुम्हारा आ जाएगा इस दिशा में, ये आ जाएगा एफ पी, और ये होगा 90 डिग्री। अरे समझ में आया? तो ये बन गया क्या, ये बन गया क्या, मर्चेंट सर्कल। ये क्या बन गया, मर्चेंट सर्कल। तो ये तुम्हें बनाने आना चाहिए। तो रफ में बना लोगे जल्दी जल्दी, कोई नहीं है तो मैं समझाने के लिए बनाया। अच्छा अब बताओ, ये एंगल है अल्फा, ये एंगल है बीटा, ये है 90 डिग्री, तो ये क्या होगा, ये होगा 90 माइनस बीटा, और ये होगा फिर अल्फा। तो ये एंगल क्या होगा, बीटा माइनस अल्फा, क्योंकि टोटल क्या है 90 डिग्री है, टोटल क्या है 90 डिग्री। देखो फिर बता रहा हूँ, समझना अच्छे से समझना। देखो देखो ये अल्फा है, ये इधर आ रहा है, ज्योमेट्री पढ़े हो, ज्योमेट्री थोड़ा बहुत भी, ये आ रहा है, ये इधर आ रहा है। तो ये अगर अल्फा है तो ये एंगल अल्फा होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम? अच्छा ये एंगल 90 माइनस बीटा होगा, बिकॉज ये 90 है, ये बीटा है, ये 90 माइनस बीटा, ये अल्फा। अच्छा टोटल एंगल कितना है 90, तो 90 में से सब्ट्रैक्ट करोगे 90 माइनस बीटा प्लस अल्फा, तो 90 90 कट जाएगा, बीटा माइनस अल्फा नहीं बचेगा, तो बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा। तो ये वाली एंगल हो जाएगी, ये एंगल हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा, दिस एंगल विल बी बीटा माइनस अल्फा, राइट? एवरीवन गॉट इट? ओके फाइन, okay fine, beta minus alpha, very good, very good, very good. This will be beta minus alpha. Now it will be a, this point will be b, this point will be c, this will be d, this will be e, correct? This is the merchant circle, this is the merchant circle, very famous merchant circle it is, right? So you can see this very famous merchant circle it is. So in semester as well as in engineering services, in 20 marks they, 15 marks they used to ask, draw the, write all the forces in a orthogonal machining operation, and with the help of that forces draw a merchant circle and find out the expression of cutting force in it, find out the expression of cutting force in it. Okay, now see, now I'm going to derive the forces, right? See, in this in all triangle, the first I am going to move in the triangle A, this, in this triangle is AED, in triangle AED. Okay, see, in triangle AED, tell me, in triangle AED tan beta is equals to, everyone please tell me, tan beta is equals to, tan beta, trigonometry padhe ho, tan beta, this is the perpendicular and this is the base, f by n. Okay, tan beta is equals to f by n, correct? And f by n is equals to mu, f by n is equals to mu. So therefore this is the very important formula, tan beta is equals to mu, tan beta is equals to mu. Directly you have to remember, no need to draw the merchant circle whenever you find any problem. Okay, sometimes directly if you memorize the formula you can directly get the answer. Okay, tan beta, therefore the beta is, if they ask you to find out beta, that is the friction angle, it will be tan inverse mu, tan inverse mu. Any problem? Tan inverse mu. Got it, very good, very good.
Okay, two formula. This is the formula number 1, this is the formula number 2. All the formulas are important. Okay, now let's move to this ACD, in triangle ACD. Okay, in triangle ACD, in triangle ACD, in triangle ACD, what is there? Tan beta minus alpha, tan beta minus alpha, tan beta minus alpha. See ACD, this is the beta minus alpha, tan beta minus alpha, tan theta P, PT, FT, thrust force by cutting force, thrust force by cutting force, tan beta minus alpha, thrust force. Oh, sorry, this is the Fn, sorry, this will be your Fn, right? This will be your Fn, sorry, this is your Fn, this is the normal force on the shear plane, this is your shear force, this is your thrust force. Okay, so tan beta minus alpha Ft upon Fc, tan beta minus alpha Ft upon Fc, thrust force. Okay, tan beta minus alpha is equals to Ft by Fc. Therefore, beta minus alpha, this is also is the formula number 3, tan beta minus alpha. Okay, now beta minus alpha is equals to tan inverse Ft by Fc. So sometimes they will ask you to calculate beta. Beta is equals to alpha plus tan inverse thrust force by cutting force. So when they suppose orthogonal rake angle is given, thrust force is given, and cutting force is given. So when these three parameters is given, you can calculate frictional angle. Beta is equals to alpha plus. So either you remember the formula number 3 or formula number this directly beta. And sometimes beta will be given, beta and alpha, cutting force is given, you have to find out thrust force. Maybe any kind of situation you have to face. Fourth, now let's move to after fourth. Now let's move in the now in this triangle cos beta minus alpha. If I will write cos beta minus alpha, okay, in same triangle cos beta minus alpha. Cos beta minus alpha, okay, tan beta minus alpha, cos beta minus alpha. Cos is b by h, cos beta, the base is this cutting force, and this is your resultant R. Okay, तो रिजल्टेंट का यही तो कमाल है मर्चेंट फैक्ट यार, सबका रिजल्टेंट सेम निकालिए. मतलब एक बार अगर तुमको पता चल गया रिजल्टेंट, एक भी कुछ पता है तो तुम बाकी सारा निकाल सकते हो, सारा का सारा फोर्स निकाल सकते हो इसमें. यही ब्यूटी था मर्चेंट के एजम्पशन का. भी दिखाता हूं मैं कैसे, क्योंकि सबका रिजल्टेंट सेम है. तो कटिंग ये हो गया हमारा cos बीटा माइनस अल्फा हो गया FC अपॉन R, FC अपॉन R आप चेक कर लीजिएगा, FC अपॉन R. ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा FC अपॉन cos बीटा माइनस अल्फा, FC अपॉन cos बीटा माइनस अल्फा. अच्छा, जिसको डिटेल में लेक्चर चाहिए, डिटेल में सर एक एक चीज पढ़ना है, पूरा मैन्युफैक्चरिंग पढ़ना है, जूम लेक्चर्स फ्रॉम 1 September आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बैच. in one batch currently the RSC is running, refrigeration and air conditioning, and if you want to join a batch which I am going to start from 1st September on Zoom from metal cutting, right, in manufacturing. So manufacturing topic is going to be started, so you can join soon as possible. ठीक है, तो आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके दोस्त हैं, आप जूम पे लेक्चर ज्वाइन कीजिए और मैन्युफैक्चरिंग एकदम आराम से पढ़िए, जितने आराम से पढ़ सकते हैं आप मैन्युफैक्चरिंग पढ़िए. ठीक है, एकदम दिल लगा के पढ़िए मैन्युफैक्चरिंग, और मैं गारंटी दे रहा हूँ, आई कैन गारंटी यू, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर लीजिएगा मुझसे तो. ठीक है, जूम पे मेरा नंबर अगर चाहिए तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, जूम पे क्लास रजिस्टर कर लीजिए 8527014884. ठीक है, जूम पे लेक्चर चल रही है जूम पे. ठीक है, 1 सितंबर से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो रहा है, 1 मंथ में फिनिश हो जाएगा, 1 मंथ में फिनिश हो जाएगा.
वन मंथ में फिनिश हो जाएगा दोस्त। ओके, आर इज एफ सी अपॉन कॉस बीटा माइनस अल्फा। ये आ गया दोस्त रिजल्टेंट, ये आ गया दोस्त रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट आ गया, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिजल्टेंट याद करने का उतना जरूरत नहीं है, जो याद करना है वो मैं बॉक्स में घेर रहा हूँ, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट है ना। अनबॉक्सिंग जो है विदाउट बॉक्स वो उसकी जरूरत नहीं। चलो अब चलते हैं किसमें, अब चलते हैं ट्रायंगल एबीडी। इन ट्रायंगल एबीडी आ जाओ, इन ट्रायंगल एबीडी, इन ट्रायंगल एबीडी, इन ट्रायंगल एबीडी, इन ट्रायंगल एबीडी आ जाओ। इन ट्रायंगल एबीडी बताओ मुझे, एबीडी टोटल एंगल इज 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा, 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा, टोटल एंगल इज 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा। तो कॉस, कॉस 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा एफएस अपॉन आर, एफएस अपॉन आर, राइट, दिस इज 90 डिग्री, तो एफएस इज द शियर फोर्स। तो चलो कॉस 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा, कॉस 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा। देख रहे हो मशीनिंग को लोग बोलता है कि बहुत थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल नहीं, बहुत कॉन्सेप्चुअल है। और 80% 90% प्रॉब्लम कॉन्सेप्चुअल ही आता है गेट में, थ्योरी नहीं आता है, बहुत कम आता है। एफ एस अपॉन आर, ठीक है, चलो एफ एस अपॉन आर। तो चलो इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा एफ एस इंटू 1/r। 1/r हमारा हो जाएगा कॉस बीटा माइनस अल्फा अपॉन एफ सी। सर आपको कैसे पता चला 1/r की वैल्यू? 1/r यहां से पता चल लिया, r निकाल लिए थे, 1/r यहां से पुट कर दिए, ठीक है। तो क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि हमें एफसी चाहिए। मेन क्या है? कटिंग फोर्स, काटने में कितना पैसा खर्चा होगा, कटिंग फोर्स कितना लग रहा है, क्योंकि कटिंग फोर्स कितना लग रहा है उसकी मदद से तुम निकाल सकते हो कटिंग पावर। और जब पावर कंजम्पशन पता चलेगा तो तुम्हें पता चलेगा बिजली कितना उठेगा और बिल कितना आएगा अगर एक मशीन तुम इंस्टॉल कर रहे हो तो मेन इंपॉर्टेंट है पावर निकालना, कटिंग पावर, और तुम्हारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए उसको मिनिमाइज करना। किस तरह तुम मशीनिंग करो तुम्हारा कटिंग पावर क्या हो, हमेशा मिनिमम हो, ठीक है। तो तुम्हारा जो एफ सी है कटिंग पावर, ये क्या आएगा दोस्त बताओ? सर ये आएगा एफ एस इंटू कॉस बीटा माइनस अल्फा अपॉन कॉस 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा। बोलो 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 बोलो, आएगा? बोलो आएगा? ये आएगा, बिल्कुल आएगा सर, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। कटिंग फोर्स आ गया इस टर्म में। तो ये भैया याद रखना है इसको, ये भैया याद रखना है इसको, क्या रखना है, याद रखना है। कटिंग फोर्स इज इक्वल्स टू एफ एस शियर फोर्स कॉस बीटा माइनस अल्फा कॉस 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा। कोई प्रॉब्लम? अच्छा अब देखो, अब देखो मैं एक यहाँ पे अजम्पशन ले रहा हूँ, टाउ, टाउ इज द अल्टीमेट shear stress of the material, shear stress of the workpiece, of the work material. तो टाउ अगर तुम्हारा अल्टीमेट शियर स्ट्रेस है दोस्त, शियर स्ट्रेस है क्योंकि शियर फेलियर हो रहा है शियर प्लेन पे, तो अगर तुम्हें स्ट्रेस पता है तो शियर फोर्स कैसे निकाल सकते हो बताओ? सर हम जानते हैं कि शियर फोर्स जो होगा ये होता है, क्या होता है, जो शियर स्ट्रेस होता है टाउ, ये होगा फोर्स बाय एरिया होगा। सर ये टाउ जो हो जाएगा ये हो जाएगा शियर फोर्स बाय शियर एरिया। बोलो होगा? शियर फोर्स बाय शियर एरिया। तो एफ एस अपॉन शियर एरिया क्या था, शियर एरिया क्या था, बीटी बाई साइन फाइव, याद है? बीटी बाई साइन फाइव निकाले थे पीछे, पिछला लेक्चर, पिछला लेक्चर जाके देखो, शियर एरिया बीटी बाई साइन फाइव। दिखा दे क्या? फिर दिखा दे, बोलो दिखा दे। अच्छा देखो, देखो कुछ लोग बोल रहे हो, देखो देखो, देख लो, रो नहीं रो नहीं, देख लो शियर एरिया, शियर एरिया, शियर एरिया, शियर एरिया, देखो शियर एरिया, शियर एरिया बीटी बाई साइन फाइव, यहाँ पे देखो ये था टी बाई साइन फाइव, ये बी था, तो शियर एरिया क्या आ गया, बीटी बाई साइन फाइव। कोई प्रॉब्लम? तो बीटी बाई साइन फाइव शियर एरिया आ गया, तो बीटी बाई साइन फाइव लिख दिए। तो अब बताओ तुम्हारा जो टाउ यहाँ से क्या आ रहा है, टाउ हमें निकाला शियर फोर्स, सॉरी नॉट टाउ, इन टर्म्स ऑफ टाउ। तो एफ एस आ जाएगा सर शियर फोर्स, ये आ जाएगा टाउ बीटी बाई साइन फाइव। बोलो आ जाएगा? टाउ बीटी बाई साइन फाइव, ये आएगा शियर फोर्स, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। ये आ गया टाउ, शियर फोर्स आ गया।
एक फोर्स तुमको पता चल गया, एक फोर्स कैसे पता चला? देखो सबसे पहला फोर्स तुम पता किए, कैसे पता किए सर? अल्टीमेट शियर स्ट्रेस, तुम मटेरियल खरीदोगे, प्रॉपर्टी ये बता देगा, इसका अल्टीमेट स्ट्रेस ये है, यील्ड स्ट्रेस ये है, इंड्योरेंस लिमिट ये है, ये तो परचेज वैसी वक्त बता देता है। चलो वो पता चल गया। दूसरा विड्थ ऑफ कट, ये क्या है? विड्थ ऑफ अनकट चिप, ये क्या है? अनकट चिप थिकनेस, ये तो डेटा दिया रहेगा कितना अनकट चिप है, कितना काटना है नहीं काटना है। फाई, फाई कैसे निकालोगे? ये फाई निकाल लेंगे सर, आपने पढ़ाया है, tan इनवर्स r cos अल्फा अपॉन 1 माइनस r sin अल्फा, यहां से ये फाई निकाल लेंगे, पहले वीडियो में पढ़ाया, बिल्कुल पढ़ाया, सही बात है, वहां से फाई निकाल लेंगे, बीटा दिया रहेगा, टी दिया रहेगा, ये मटेरियल प्रॉपर्टी ये भी दिया रहेगा। चलो अब एफएस की वैल्यू, जैसे ही तुमको शियर फोर्स पता चल गई, बीटी अपॉन साइन टाउ, बीटी अपॉन साइन फाई, टाउ क्या होगा? न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होगा ना, मेगा पास्कल, मेगा पास्कल मतलब न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है ना, और ये हो जाएगा एरिया हो जाएगा एमएम स्क्वायर में, तो फोर्स किस में आएगा? न्यूटन में आएगा। चलो तो इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, क्या इसमें पुट कर दो एफएस की वैल्यू। तो जैसे ही एफएस की वैल्यू पुट करोगी तो तुम्हारा आएगा एफसी आएगा, देखो क्या आता है एफसी, एफसी आएगा सर टाउ बीटी अपॉन साइन फाई इनटू कॉस बीटा माइनस अल्फा अपॉन कॉस फाई प्लस बीटा माइनस अल्फा। अरे बोलो रे बाबा, समझ में आ रहा है? तो टाउ बीटी अपॉन साइन फाई कॉस बीटा माइनस अल्फा अपॉन कॉस फाई प्लस बीटा माइनस अल्फा, ये हो गया कटिंग फोर्स। बोलो, ये हो गया कटिंग फोर्स, एक्सप्रेशन ऑफ कटिंग फोर्स। ये कब आया था? इसरो में आया था 2019 में, यही क्वेश्चन आया था इसरो में, सेम क्वेश्चन आया था इसरो, सेम सेम। जाके क्वेश्चन बैंक खोल के देखो, नहीं आया होगा तो पूछना, सेम क्वेश्चन आया था इसरो के एग्जाम में, ठीक है। टाउ बीटी अपॉन साइन फाई कॉस बीटा माइनस अल्फा अपॉन कॉस फाई प्लस बीटा माइनस अल्फा। एनी प्रॉब्लम जेंटलमैन? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, देख लो, यही था, यही था एफएस था ना, ये मर्चेंट सर्कल की मदद से निकाले एफएस, कॉस बीटा माइनस अल्फा कॉस फाई प्लस बीटा माइनस अल्फा, राइट राइट राइट, वेरी गुड। लाइक करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, जो देख रहे हो सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब कर लो, ओके। जूम पे 1 सितंबर से क्लास स्टार्ट हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग का, और पूरा कंप्लीट फ्रॉम एसएससी जेई टू आईआरएमएस इंजीनियरिंग सर्विसेज, ईच एंड एवरीथिंग आई विल कवर, वर्कबुक भी मिलेगा, सारा चीज आपको, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। जूम पे कांटेक्ट करो, व्हाट्सएप नंबर पे, नंबर क्या है? नंबर है 885270148884, ठीक है, नंबर पे कांटेक्ट करो। चलो आगे देखो, एफसी पता चल गया, तो अब तुम्हें कटिंग फोर्स तो निकाल लिए, अब अगली बात आएगी, सर कटिंग फोर्स तो निकल गया, सर पावर कैसे निकालेंगे? कटिंग पावर की मेन तो पावर है, और पावर को मिनिमम करना है, तो पावर जो होता है पीसी, पीसी इज योर कटिंग पावर। सर कटिंग पावर क्या होगा? कटिंग पावर होगा, पावर क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट किसका? फोर्स और वेलोसिटी का, तो कटिंग फोर्स इंटू कटिंग वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट, तो कटिंग फोर्स इंटू वी इंटू कॉस थीटा, थीटा कितना है? 0 डिग्री, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? एफ सी इंटू वी, 0 डिग्री है ना, बिकॉज कटिंग फोर्स, बिकॉज कटिंग फोर्स, because cutting force and cutting velocity acts in the same direction, cutting force and cutting velocity act in the same direction, that's why cos 0 is 1, okay, angle is 0. So now fc into v, cutting velocity, so now the cutting power expression will be, it will be fc into v means tau bt upon sin phi into cos beta minus alpha upon cos phi plus beta minus alpha into v, this is the expression, right? This is the expression, this is the expression. So here cutting force is, cutting power is this, so this and this both are important.
ओके okay, now see, now what happened, now the next we can find out. Actually you are unable to see my face because you know the condition of electricity in Bihar. What can I say? तो यहाँ पे पावर कट बहुत ज्यादा हो रहा है. ओके कोई बात नहीं, जो काम की बात है वो चल रही है, चेहरा नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है. चलो ये आ गया हमारा कटिंग फोर्स. कटिंग फोर्स आ गया. अब क्या बात आती है, सर कटिंग फोर्स को मिनिमम कर दीजिए. ऐसा कोई कंडीशन निकालिए कि कटिंग फोर्स मिनिमम हो जाए. चलो मिनिमम मैक्सिमम, फिर सेम प्रिंसिपल, द डिफरेंशिएशन ऑफ कटिंग पावर विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल. विच इज वेरिएबल हियर? टाउ इज द मटेरियल प्रॉपर्टी ultimate, and b is the dimension given, that is the dimension of the workpiece. It depends upon the workpiece. Okay, friction depends upon mu, and mu is also material property, right? Coefficient of friction, roughness. So here mu is also mu will change when the rake surface will change, right? Then only the mu will change. Alpha is also depends upon tool geometry. Cutting velocity is also a fixed parameter. It depends upon जो कटिंग कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा कितना कटिंग वेलोसिटी. आपका मटेरियल रिमूवल रेट कितना होना चाहिए उस पर डिपेंड करेगा. अगर ज्यादा मटेरियल रिमूवल रेट चाहिए तो कटिंग वेलोसिटी बढ़ा देंगे. मतलब जो वेरिएबल सिर्फ यहाँ पे है वो क्या है? फाई. द ओनली वेरिएबल इज फाई. तो कीपिंग द अदर पैरामीटर कांस्टेंट, कीपिंग द अदर पैरामीटर्स कांस्टेंट. ओके, कीपिंग द अदर parameter constant except phi shear angle, है ना. और सबको कांस्टेंट को मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं, देखो टाउ बीटी into cos beta minus alpha into v, right? All the terms present in the numerator, because फाई नहीं है यहाँ पे, यहाँ भी फाई नहीं है, फाई ही ना वेरिएबल है, सिर्फ फाई नहीं है. तो ओके, तो ये हमारा कांस्टेंट, इसको मैं के अज्यूम कर रहा हूँ कांस्टेंट. ओके, कांस्टेंट सब कांस्टेंट है, तो प्रोडक्ट इसका क्या होगा? सारे को मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक कांस्टेंट टर्म आएगा कुछ. तो अब तुम्हारा जो कटिंग पावर है दोस्त, देखो कटिंग पावर तुम्हारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा? तुम बोलोगे सर ये आ जाएगा के अपॉन साइन फाई इंटू कॉस फाई प्लस बीटा माइनस अल्फा. बोलो 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 बोलो, आ जाएगा? आ जाएगा. चलो तो इसको तुम लिख दोगे सर एफ सी इज इक्वल्स टू के साइन फाई इंटू कॉस फाई प्लस बीटा माइनस अल्फा. बोलो आ जाएगा दोस्त? ये आ जाएगा पावर -1, आ जाएगा ना पावर -1, पावर -1. तो चलो ये आ गया हमारा कटिंग पावर इस टर्म पे, ये आसान कर दिया मैंने. इसको अब तुम डिफरेंशिएट करो, डी पीसी बाई डी फाई निकालो. डी पीसी बाई डी फाई क्या होगा? के कांस्टेंट है, के साइन फाई इंटू कॉस फाई प्लस बीटा माइनस अल्फा टू दी पावर -2, है ना. और ये एक आ जाएगा -1, तो ये पावर आ जाएगा यहाँ पे माइनस के. ओके, अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे u इंटू वी पे, u इंटू वी पे डिफरेंशिएशन करोगे, u इंटू वी पे इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या आएगा बताओ? कॉस फाई प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू कॉस फाई माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी. ठीक है, इट विल बी u into differentiation of this, and then now this sin phi into differentiation of this sin phi plus beta minus alpha. And we know what we know, that the differentiation of cos is minus sign. Cos, it will be there, that's why I used minus sign here. माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है, तो ये हमारा आ गया u into v पे डिफरेंशिएशन करने पे. तो अब एक बात बताओ, फॉर मिनिमम पावर कंजम्पशन, फॉर साथ साथ करते चलो, फॉर मिनिमम
power consumption, for minimum power consumption, the derivative, this will be equal to 0. Can I write like this? This is 0, and this minus k, tell me, this will be minus k upon, the term will be sin phi into cos, directly it will, I can write it as 0. Whenever it multiplied by 0, it will become 0, right? But maybe some students get confused, I don't know. So this will be 0 for minimum power, and this will be minus k upon power 2. And can you tell me what is this value? See, this is cos A into cos B minus sin A into sin B. So we can write it cos A plus B. It will be cos A. A is phi plus beta minus alpha, and plus B. B is phi, right? This will be your A cos A. This will be your cos B, right? Cos A plus B. Okay. Now you can see when it will be multiplied by this and divided by this. So whenever these terms come 0 by something, it will be 0. Therefore, you can write that cos phi plus beta minus alpha plus phi is equals to 0. Therefore, cos 2 phi plus beta minus alpha is equals to, you can write cos 0, right? Cos 0 or cos pi by 2, cos 90 degree. Cos 90 degree or cos pi by 2. Therefore, the relation you are getting 2 phi plus beta minus alpha is equals to 90 degree. This is the relation of minimum energy consumption. This is called Ernest and Merchant minimum energy consumption condition, right? So this is the relation. This is the relation for minimum energy consumption in terms of degree. And in terms of radian, it will be 2 phi plus beta minus alpha is equals to pi by 2 radian. Pi by 2 radian, correct? Okay, fine. 2 phi plus beta minus alpha is equals to pi by 2. Any problem in this? Now, this is the Ernest and Merchant minimum energy consumption condition. Ernest and Merchant minimum energy consumption condition. मिनिमम बहुत बार कि कोई सा एग्जाम नहीं जिसमें नहीं आया ये कंडीशन. देखना क्वेश्चन बैंक खोल के कितनी बार आया. मिनिमम एनर्जी कंजम्पशन कंडीशन. समझ रहे हो? कंडीशन. ठीक है. अच्छा, कभी कभी बोलेगा कैलकुलेट द शियर एंगल फॉर विच एनर्जी कंजम्पशन इज मिनिमम. तो कैसे कैलकुलेट करोगे? द एक्सप्रेशन ऑफ शियर एंगल फॉर विच the energy consumption is minimum. This condition is this. Okay, Ernest and Merchant minimum energy consumption condition. Okay. अच्छा, अगर चलो ठीक है, थोड़ी देर बाद बताएंगे. अच्छा, now the heading is the shear angle for minimum energy consumption. The shear angle for minimum energy consumption. मतलब जब एनर्जी कंजम्पशन मिनिमम हो तब शेयर एंगल क्या होगा. एक था एक्चुअल शेयर एंगल, क्या फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स r cos अल्फा अपॉन 1 माइनस r sin अल्फा. तो ये होगा सर, तुम बोलोगे सर ये होगा फाई 2 phi plus beta. You can write it like 2 phi is equals to 90 degree plus alpha minus beta. So just use. Okay, so this will be now phi is equals to 45 degree
प्लस अल्फा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2, right? Alpha by 2 minus beta by 2. This is the phi, right? This is the phi for minimum energy consumption condition. This is the phi for minimum energy consumption condition. And in terms of radian, you can write pi by 4 plus alpha by 2 minus beta by 2. Are you getting my point, everyone? So these are the phi you will calculate only when the word is written minimum energy consumption. Otherwise, you cannot use this formula to find out phi. Remember my words. This you can only use for this condition when this condition is written. When this condition is written. Otherwise, please don't use it. Otherwise, please don't use it. Okay, please don't use it. Okay, everyone satisfied with this? Now I am going to write. See one thing. Now I am going to discuss you the two other condition, that is your Stabler and Lee and Schaefer condition. I am not going to explain what is Lee Schaefer here. Okay, I am not going to explain in this. If you want to know what is Lee and Schaefer, how Lee and Schaefer finds this relations, I have shown you only one method. एक ही मेथड मैं बताया हूं जो रिजल्ट निकाल के प्रूफ करके दिखा दिया अर्नेस्ट एंड मर्चेंट का. लेकिन ली और शेफर कैसे निकाला, स्टेबलर और कैसे निकाला, मैं रिजल्ट सिर्फ बता रहा हूं. बाकी उसके लिए तो बाबू जूम क्लास, जूम लेक्चर ज्वाइन करना पड़ेगा आपको. ठीक है, जूम लेक्चर के लिए मैं बता दिया कैसे. 8527014884 इस पे व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों है. टेलीग्राम पे भी आप मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं. ठीक है, तो एक और मिनिमम एनर्जी कंजम्पशन का, ये तो अर्नेस्ट एंड मर्चेंट का कंडीशन था ना, उसी तरह दो साइंटिस्ट और आया और उसने भी दिया कंडीशन, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं. ठीक है, ठीक है. क्या है आपका एक्सप्रेशन ऑफ मिनिमम एनर्जी, कंडीशन फॉर मिनिमम एनर्जी बाय स्टेबलर. कंडीशन ऑफ मिनिमम एनर्जी कंजम्पशन by the name of the scientist is very important, Lee and Schaefer. By Lee and Schaefer. Okay, by Lee and Schaefer. चलो, तो ली एंड शेफर के अकॉर्डिंग क्या है, देखो याद रखने का सिंपल तरीका. सिंपल क्या करो, क्या है सिंपल तरीका. ली एंड शेफर क्या दिया था, अगर तुमको अर्नेस्ट एंड मर्चेंट याद है, अर्नेस्ट एंड मर्चेंट अगर याद है, 2 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री. इस 2 को यहां से हटाओ और इसमें डिवाइड कर दो. क्या कर दो, इस 2 को यहां से निकालो, इसको इसी तरह रहने दो. इस 2 को हटाओ और इस 90 को डिवाइड कर दो, मतलब 45. मतलब 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 45. बस इस 2 को यहां से हटा देना, इस 2 को यहां हटाना है और इसमें डिवाइड कर देना है. बहुत सिंपल. तो 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा क्या है कंडीशन, 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री और पाई बाई सॉरी नॉट 90, 45 डिग्री, राइट. और पाई बाई 4, इसको याद रखेंगे. ली एंड शेफर कंडीशन है, बहुत बार पूछता है गेट में. ठीक है, इस बार 19 में क्वेश्चन इस पे आया है, देख लेना. ये ली एंड शेफर कंडीशन था. ठीक है, ली एंड शेफर. अच्छा, फाई पूछेगा, ली एंड शेफर के अकॉर्डिंग फाई बता दो. तो फाई हो जाएगा तुम्हारा 45 डिग्री प्लस अल्फा माइनस बीटा. फाई इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस अल्फा माइनस बीटा. तो ये हो जाएगा दोस्त मेरे ली एंड शेफर के अकॉर्डिंग, ली एंड शेफर के अकॉर्डिंग हो जाएगा. ठीक है, चलो. अच्छा, अब अगला देख लो, कंडीशन ऑफ मिनिमम एनर्जी बाई स्टेबलर. स्टेबलर भी एक थे, स्टेबलर के अकॉर्डिंग देख लो क्या है. बाई स्टेबलर. ओके, तो स्टेबलर के वजह से देख लो. लेकिन कैसे आया, दर्द हो रहा होगा लेकिन बताऊंगा नहीं. ठीक है ना, उसके लिए भैया जूम पे आना पड़ेगा. ठीक है, तो ये है हमारा आपका स्टेबलर भी एक साइंटिस्ट है. तो स्टेबलर कंडीशन अगर पूछ देगा, ये भी पूछा जा चुका है एग्जाम में. तो स्टेबलर में क्या करना है, सिंपल
सर स्टेबलर में क्या करना है, ली एंड शेफर कंडीशन में, ली एंड शेफर कंडीशन में अल्फा को अल्फा बाई 2 से रिप्लेस कर देना। ली एंड शेफर कंडीशन में अल्फा को अल्फा बाई 2 से रिप्लेस कर देना। ली एंड शेफर कैसे मिलेगा, बस 2 फाई में जो 2 है उसको 90 से डिवाइड कर देना है, याद रखने का तरीका है ये सब, ठीक है। तो ये हो जाएगा फाई प्लस बीटा, पाई प्लस बीटा माइनस अल्फा बाई 2, पाई प्लस बीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू 45 डिग्री और पाई बाई 4, ठीक है, और पाई बाई 4, और फाई तुम्हारा निकलेगा, फाई इज इक्वल्स टू 45 डिग्री प्लस अल्फा बाई 2 माइनस बीटा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, बस अल्फा को अल्फा बाई 2 से रिप्लेस कर देना है। चलो तो ये, और दूसरा हो जाएगा फाई इज इक्वल्स टू पाई बाई 4, कोई भी पूछ सकता है, प्लस अल्फा बाई 2 माइनस बीटा। तो तीनों याद रखिएगा, कैसा भी एग्जाम में ऑप्शन दे सकता है आपको, ठीक है। ओके फाइन एवरीवन, so these are the very important discussions, these are the very important discussions, so you must remember all these discussions, okay। तो अभी बहुत कुछ है, एक और पार्ट 3 भी बनाएंगे, उसमें भी कुछ कुछ बताएंगे तुम लोग को, ठीक है। तो मजा आया तो लाइक करो, मजा आया, मिनिमम एनर्जी कंजम्पशन कंडीशन, मर्चेंट सर्कल कैसे बनाए, फोर्स रिलेशन कैसे निकालें, स्टेबलर कंडीशन क्या था, ली एंड शेफर कंडीशन क्या था, अर्नेस्ट एंड मर्चेंट कंडीशन क्या था, तो सब मैंने पढ़ाया है। और अगर ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है, तो इसी तरह बता रहा हूँ, एक बार लेक्चर ज्वाइन करो, जूम पे क्लासेस स्टार्ट हैं, ठीक है, जूम पे क्लास स्टार्ट है, 1 सितंबर से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो रहा है, अपने जितने भी दोस्त है वो सबको लेके ज्वाइन करो, और वहां पे बहुत मजा आएगा, ठीक है। चलो चलो, तो थैंक यू, फिर हम लोग मिलेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में बताइए, कैसे निकाले हैं, क्या किए हैं, कैसे किए हैं, मर्चेंट सर्कल कैसे ड्रॉ किए, रिजल्टेंट क्या था। चलो फोर्स एनालिसिस से स्टार्ट किए थे, यहाँ से ये डायग्राम बनाए थे, है ना, ये डायग्राम बनाए थे, देख लो ये डायग्राम फिर से, किसी को चाहिए फोटो लेना, फोटो ले लो, कैसे बनाए, पिक्चर क्लियर, पिक्चर क्लियर। चलो फिर, चलो फोर्स एनालिसिस यहीं से स्टार्ट किया था मैंने। चलो थैंक यू, बाय, ओके। लेकिन मजा आया तो प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो और दोस्तों में शेयर करो, जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो, ठीक है, ओके। और मैं फिर जाते जाते बता दे रहा हूँ, जूम लेक्चर्स, और मेरा नंबर कितना है, नंबर कैसे कांटेक्ट करेंगे, 8527014884, टेलीग्राम पे अयाज स्टूडेंट्स केयर है, अयाज स्टूडेंट्स केयर टेलीग्राम पे, ठीक है। उस पे भी वीडियोस अपडेट होता रहता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस सारा कुछ है उस पे, ठीक है। और इस पे भी कांटेक्ट कर सकते हो तुम, और व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, और जूम पे जूम आईडी मिल जाएगा, तो डायरेक्ट जब भी दिक्कत हो तब भी डायरेक्ट लाइव क्लासेस ले सकते हो, ठीक है। चलो पावर भी ऑफ हो गया, कल मिलते हैं फिर, बाय, थैंक यू, सी यू।